Hello, Taurus people, the Taurus zodiac signs. Welcome to my reading. I'll be doing your reading based on manifestations, positive affirmations, and at last we'll see the guidance from the Archangel Oracle deck, Sword of Light, as a guidance. So take all these messages as an universal guidance. Do the needful in your life, bring those positive changes in your life. It's for your betterment. And one more thing which I need to say is you can watch it as a sun sign, Taurus moon sign, and Taurus ascendant or rising sign. Ascendant and rising sign is same, the meaning is same. So Taurus sun sign, Taurus moon sign, and Taurus ascendant sign or rising sign. So it's a bi-monthly reading from 1st of September to 15th of September. Okay, so first I'll pull 3 manifestation cards, then will be the step of positive affirmation cards, and at last the guidance from the Archangel Oracle deck. Okay, so let's start with your reading, Taurus people. Okay. This is the spread of manifestation cards. I'll pick up 3 cards for Taurus people. Card 1, card 2, and card 3. Okay, so these are the 3 manifestation cards. Okay, so first manifestation card says count your blessings. What is manifestation? How is it done? You will find videos on my YouTube channel. You can go through those videos to know the exact meaning and deeper meaning of it and take it as a guidance. Know the exact meaning and work accordingly with your life, with your manifestations, with the positive affirmations. I also have videos on my YouTube channel for positive affirmations also. So please do refer to those videos for your own betterment, for your guidance in your life, and for the overall guidance basically. Okay, so first manifestation card is, manifestation में short में बता दे रही हूँ. manifestation क्या होता है? When we bring something into reality, जब कुछ चीज़ हम लोग के थॉट से जो डिज़ायर में होते हैं या ड्रीम्स में होते हैं, उसको जब रियलिटी में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, वास्तव में लाते हैं, उसको मैनिफेस्टेशन बोला जाता है. Okay, that is known as manifestation, or manifesting something that you desire or wish or dream of. So that is manifestation. First card says, these are the cards of manifestation. For Taurus people, first card says, count your blessings. Certainly, we should always do that. We should count our blessings. Make it a daily habit to sit down and write out 10 blessings. Such a nice habit it is. If you never did anything else, this one practice would transform your life. I swear. मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन में बहुत ताकत है, लोगों को पता नहीं है. इसीलिए मैं ये सब रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोग अपने लाइफ को और बेहतर कर पाए.
जानिए कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, क्या मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे पॉजिटिवली एफर्म किया जाता है, पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होता है, यूनिवर्स से कैसे बात किया जाता है। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, पेन पेपर लेके लिखिए जितने भी ब्लेसिंग्स, गुड थिंग्स आपके लाइफ में हुए हैं। फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव वंस, डोंट फोकस ऑन दैट। अगर आप फोकस देंगे, अटेंशन देंगे, हमेशा एक चीज़ जानिएगा, जिस पे फोकस देंगे दैट विल इंक्रीज इवन मोर इन योर लाइफ। सो डोंट फोकस और पे अटेंशन टू दोज नेगेटिव थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इट विल इरेडिकेट ग्रेजुअली। जब भी आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव थिंग्स में, ब्लेसिंग्स में, जो जो आपके साथ अच्छा बीता, अच्छा हुआ, जो अच्छे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके ऊपर फोकस डालिए, अपने अच्छे काम के ऊपर फोकस डालिए और लिखिए पेन पेपर लेके कि किन किन वजह से आपको खुशी मिली है, आपके दिल में आनंद आया है, आप अच्छा महसूस किए। ये सब पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं ना, तो इसको लिखिए पेन पेपर लेके और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। यूनिवर्स को थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी होता है। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, Taurus people, count your blessings. Write down 10 blessings, ऐसा 10 हो देखिए, या तो फिर 5 से भी आप शुरू कर सकते हैं। 5 कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें जो आपको लगे कि वाकई में you're blessed by the universe. If you never did anything else, this one practice would transform your life. शुरू कीजिए, फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं। चेंज योर थॉट्स, चेंज द फ्यूचर। सी हाउ दिस कार्ड्स आर कनेक्टेड। चेंज योर थॉट्स, चेंज द फ्यूचर। अपने थॉट्स को, यहाँ पे जैसे कहा गया था, मैंने बोला नेगेटिव थॉट्स पे फोकस मत दीजिए। जो भी अटेंशन देना है, फोकस देना है, सिर्फ पॉजिटिव वंस में ही दीजिए, क्योंकि एनर्जी, अटेंशन जहाँ जाता है वो ग्रो करता है। तो आप अगर नेगेटिव में डालेंगे तो वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, और नेगेटिव एनर्जी ग्रो करने से क्या होता है हम सबको पता है। हाउ डू वी फील, पूरा ड्रेन कर देता है हम लोग का माइंड, शरीर, सब कुछ। हम लोग कोई नहीं चाहते हैं नेगेटिव एनर्जी अपने लाइफ में, इजंट इट? सो चेंज योर थॉट्स, चेंज द फ्यूचर। अपना सोच बदलिए, अपने फ्यूचर को बदलिए, भविष्य को बदलिए। दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन इज डन। This is how you can change your dream and desire into reality. You can transform them into reality. You can bring them into fruition. At the end of every day, before you go to sleep, think through the events of the day. सारा दिन में क्या क्या हुआ, सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट सोच लीजिए। If any events or moments didn't go the way you wanted, replay them in your mind the way you wanted them to go. अगर सोचते सोचते ऐसा कुछ आपको लगा कि ये पर्टिकुलर काम जो मैंने किया या मेरे साथ ये सिचुएशन जो हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मुताबिक, मेरे चाहने के मुताबिक नहीं हुआ, थोड़ा नेगेटिव लगा उस सिचुएशन को, या फिर उस इंसान को, या फिर उस काम को, या फिर अपने आप को ही, होता है ना हम लोगों के साथ ऐसा। तो अपने माइंड पे उस सिचुएशन को पूरा जो सिचुएशन है उसको रिप्ले कीजिए अपने माइंड में। कैसे? जैसा आप चाहते थे कि वो हो, क्योंकि वो तो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, उस अनुसार नहीं हुआ, तो रिप्ले करके ऐसा सोचिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, एज ए विजुअलाइज कीजिए आंख बंद करके, लेटे लेटे, कि आपको जैसा चाहिए था सिचुएशन होना, या आप जैसा करना चाहते थे वैसा ही बिल्कुल हुआ। ऐसे इसको विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में।
Okay, so that is how you can change it. You have now completely changed your future. क्योंकि आपने अपना थॉट्स बदल दिया तो आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन ऑकर्स. मूविंग ऑन टू द थर्ड कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन द सोल्यूशन. हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. इट कैन वेरी, यू नो, इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग फॉर टॉरस पीपल. कुछ टॉरस के लिए कुछ सिचुएशन होगा, कुछ टॉरस के लिए कुछ सिचुएशन होगा. ऐसे वेरी करेगा, बिकॉज इट्स नॉट फॉर वन टॉरस ऑब्वियसली, इट्स फॉर वेरियस एंड सेवरल टॉरस ज़ोडिएक साइंस. सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग. आपके सिचुएशन के साथ जैसा मैच हो रहा है आप उस स्टोरी को लीजिए, उस चीज़ को लीजिए, सिर्फ उस गाइडेंस को लीजिए. जो मैच नहीं हो रहा उसे छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती फिट मत कीजिए. ओके, सो फोकस ऑन द सॉल्यूशन. जैसा मैंने कहा था कि अटेंशन, एनर्जी, फोकस जहाँ जाएगा वही चीज़ ग्रो करेगा, वही चीज़ मल्टीप्लाई करता है हमेशा. ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है, ऐसे ही एनर्जीज काम करते हैं हम लोगों के अंदर, हम लोगों के थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में, माइंड में. फोकस ऑन द सॉल्यूशन. व्हेन यू रेजिस्ट अ सिचुएशन दैट हैज़ मैनिफेस्टेड, you add more energy and more power to it. See, that is what I said. जिस पे आप अटेंशन दोगे, फोकस दोगे, वो एनर्जी और ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा. इसीलिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव एक्शंस में, नेगेटिव इंसान में, नेगेटिव सिचुएशन में फोकस मत डालिए. इट्स अ बिग नो नो, इट्स अ बिग नो नो. जो भी फोकस डालना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वंस में डालिए. पॉजिटिव इंसान हो, पॉजिटिव थॉट हो, पॉजिटिव काम हो, पॉजिटिव सिचुएशन हो, सिर्फ उस पर फोकस डालिए. द इवेंट और सर्कमस्टांस कैन ओनली गेट बिगर बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. जैसा मैंने कहा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही चलता है, एनर्जीज ऐसे ही होता है. टू श्रिंक एन अनवांटेड सिचुएशन, पुट योर एनर्जी एंड पावर इन टू थॉट्स ऑफ वॉट यू वॉन्ट. देखिए, आपके ये वाले कार्ड में, सेकंड कार्ड में भी ऐसा ही आया था कि सोते सोते जब आप पूरे दिन का विचार कर रहे तो आपके मन के अनुसार जो घटना नहीं घटा, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ अगर, तो उसे दोबारा रिप्ले कीजिए अपनी इमेजिनेशन में, अपने विजुअलाइजेशन में. वैसे देखिए उसको कि ये मेरे चाहने मुताबिक हुआ, इसको अल्टर कर दीजिए. तो आगे से वो वैसा ही होगा, क्योंकि आप अपने थॉट में बदलाव लाए हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव किए हैं. यही चीज़ कहा जा रहा है इस कार्ड में भी. इसका मतलब आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, चल रहा है. हो सकता है कुछ टॉरियंस के लाइफ में ऐसा चल रहा है. हम लोग के लाइफ में सिचुएशन की कोई कमी नहीं है. सबके लाइफ में कुछ ना कुछ घटना, सिचुएशन चलता है, और सबका अलग अलग ही होता है. सो टू श्रिंक एन अनवांटेड सिचुएशन, जो आप नहीं चाहते हैं उसको अगर कम करना हो, उससे फोकस हटा दीजिए, अटेंशन हटा दीजिए पूरा. तो वो खुद ब खुद हट जाएगा. और उसके बदले में क्या कीजिएगा? पुट योर एनर्जी एंड पावर इन टू द थॉट्स ऑफ वॉट यू वॉन्ट. जो आपको चाहिए पॉजिटिवली, उसमें अपना थॉट्स का फोकस डालिए, उस थॉट्स पे फोकस डालिए, उस थॉट्स पे पावर दीजिए, उस थॉट्स पे एनर्जी एंड अटेंशन दीजिए. This is what the manifestation card has to say about you, Taurian people. Let's move on to the positive affirmation cards. Let's see what
what is in store for you, for Taurus people. Universe, please guide the Taurus people, what they need to know, what kind of positive affirmations they need to bring into their life, what kind of manifestations they need to do through their positive affirmations. Please guide them, universe. Please guide the Taurus people. Thank you so much. Okay, let's see, Taurus people. These are the cards of positive affirmations. Positive affirmations क्या होता है? हम लोग जब पॉजिटिवली कुछ अफर्म करते हैं, खुद को बोलते हैं और फिर यूनिवर्स को भी बोलते हैं, पॉजिटिवली इन एन अफर्मेटिव वे. फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ आपको एक, समझिएगा इसे, कि मैं आज से गुड फूड हैबिट डेवलप करूँगी या करूँगा. ये हुआ पॉजिटिवली कुछ कहना, पॉजिटिवली अफर्म करना. ओके, डोंट, नहीं करूँगी मैं आज से ये, मैं नेगेटिव खाना या स्पाइसी खाना, ऑयली फूड्स नहीं खाऊंगी, ऐसा मत बोलिएगा. इसे पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं कहा जाता है. जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया वो है पॉजिटिव एफर्मेशन का एग्जाम्पल. और भी पता चलेगा आगे जो आपके लिए कार्ड्स निकला है. यू कैन अंडरस्टैंड ग्रेजुअली व्हाट पॉजिटिव एफर्मेशन इज़. So Taurian, your first positive affirmation is, I am energetic and full of life. I am energetic and full of life. आप मन ही मन में इसको बोल सकते हैं. You can say it aloud. You can say it to the universe. First say it to yourself. I am energetic and full of life. अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस चल रहा है जो आपको ड्रेन कर रहा है, यहाँ पे ये जो थॉट्स की बात आई थी, नेगेटिव थॉट्स ड्रेन करता है, सो इट कुड बी हाईली रिलेटेड. सो यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी की बात आई थी. सो हो सकता है आप नेगेटिव थॉट्स के वजह से ड्रेन्ड आउट हो रहे, आपका मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो रहा है सारा दिन में. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, you need to positively affirm, I am energetic and full of life. Please write it down. I would request you to write it down. ये सब चीज़ें लिखिए आप लोग, एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए. इट्स अ बाई मंथली रीडिंग फ्रॉम 1st of September to 15th of September. लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 15 डेज़ तक आप लोग लिखेंगे. जब तक आपका ड्रीम्स फुलफिल ना हो जाए, जब तक आप बेटर फील ना कर रहे, लिखते रहिए. और लाइफ लॉन्ग इस हैबिट को बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं. लिखते जाइए, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल माय डियर. सो से दैट मेंटली, आई एम एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ. ये करते 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 आपके कॉन्शियस से जब सबकॉन्शियस में ये सिप इन करेगा, अंदर जाएगा, तब ग्रेजुअली धीरे धीरे आप चेंज फील करेंगे. अपने आप से बात कीजिए. हम लोग दूसरों लोगों से कितना बात करते हैं, अपने आप से कोई कनेक्शन नहीं होता है. बहुत कम लोग गिने चुने हैं जो अपने आप से कनेक्शन रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है. ये अपने बेटरमेंट के लिए ही ज़रूरी है और कुछ नहीं, अपने ओवरऑल लाइफ के लिए. सो डू दिस. इट इज़ बीइंग आस्क्ड एंड गाइडेड बाय द यूनिवर्स. सो प्लीज़ डू दिस, develop this habit and say these lines. I am energetic and full of life. You won't feel drained out then, my dear. Second positive affirmation says, I am deserving of relationship of my dreams. अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ या कलीग्स के साथ भी हो सकता है, रिलेशनशिप बहुत तरह का होता है ना, या फिर फैमिली लाइफ में रिलेशनशिप्स,
स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, लव लाइफ तो मैंने बोला ही। ऐसा अगर आपको लगता है कि आपके अनुसार आपका रिलेशनशिप आप जैसा चाहते हैं, आपके ड्रीम्स के अनुसार मन मुताबिक नहीं हो रहा है, if certain kind of this kind of situation is happening in your life, then what you need to affirm positively is I am deserving of relationship of my dreams. मैं सपने में जैसे चाहती हूँ, जैसे देखती हूँ, जिस टाइप का रिलेशनशिप में देखती हूँ या देखता हूँ, मुझे वैसा रिलेशनशिप चाहिए। एंड आई एम डिज़र्विंग, मैं डिज़र्व करती हूँ वैसा रिलेशनशिप, वैसा बॉन्ड, या मैं डिज़र्व करता हूँ वैसा रिलेशनशिप या फिर वैसा बॉन्ड, चाहे किसके साथ भी हो। लव रिलेशनशिप हो सकता है, कलीग्स के साथ हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, चिल्ड्रन रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर माइट बी द सिचुएशन, इट माइट वेरी फ्रॉम टॉरियन टू टॉरियन, यू नो, बिकॉज इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। सो सबके साथ एक स्टोरी तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली स्टोरी वेरी कर सकता है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स टू यू individually and respectively. So this is the second card of positive affirmation. इन सब एफर्मेशंस को आप लिखिए, बिकॉज ये आपके बेटरमेंट के लिए है। लिख के प्रैक्टिस कीजिए, डेली बोलने की हैबिट कीजिए, थॉट पे डेवलप कीजिए, इसको थॉट क्रिएट कीजिए, ये सब एफर्मेशंस का। दिस आर वेरी पावरफुल टूल्स, यू नो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एक दिन में मैजिक नहीं होता है, मैजिक होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते, तब जाके आपको मैजिक का पता चलेगा। कैसे देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज हुआ है आपकी लाइफ में। Okay, so the third card of positive affirmation says, everything I want wants me more. Everything I want wants me more. मैं जो चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ भी मुझे चाहता है या चाहती है। ऐसा बोलिए। अगर आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा हो सकता है आपकी रिलेशनशिप की बात आई हो सकता है लव लाइफ के बारे में कुछ चल रहा है आपका टॉरियन पीपल, हो सकता है वैसा रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रहा है जैसा आप ड्रीम करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। सो से एवरीथिंग आई वॉन्ट वॉन्ट्स मी मोर। मैं जैसा चाहती हूँ वो भी मुझे वही चीज़, चाहे सिचुएशन हो, चाहे पर्सन हो, कुछ भी हो। एवरीथिंग आई वॉन्ट वॉन्ट्स मी मोर। ये पॉजिटिव एफर्मेशन, इसको भी आप लिख लीजिए कहीं और डेली बेसिस पे इसका हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मन ही मन बोलिए, लिखिए, सिंस राइटिंग इज़ वेरी पावरफुल। नाउ विल मूव ऑन टू द गाइडेंस कार्ड, गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल Oracle deck. Let's see what the universe and the angels have in store for you as a guidance. All is in perfect timing. This is the guidance card for you, my dear Taurian people. All is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. यहाँ पे I किसको बोला जा रहा है? Archangel Michael को बोला जा रहा है. He is one of the angels of the angelic realm. अगर आपको पता ना हो तो आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंटरेस्ट है तो। जानिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स में क्या है, क्या नहीं है, क्या होता है। सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर से आपको यूनिवर्स के बारे में पता नहीं चलेगा। जो मिस्टीरियस साइड है यूनिवर्स का, उसको जानिए।
ये सब कुछ उस पे डिपेंड कर रहा है, उसके बेसिस पे है. The other side of the universe, what we cannot see or what we do not know. Many people don't know about this knowledge. That's why I'm sharing with you this knowledge. So take it as a positive guidance. So all is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. अगर आप कुछ बारे में सोच रहे कि मैं लूँ एक्शन कि ना लूँ, कन्फ्यूजन में है, डिलेमा में है, तो यूनिवर्स से आपको यही गाइडेंस मिल रहा है, आर्कएंजल माइकल से यही गाइडेंस मिल रहा है कि इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग नाउ. इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ. And Archangel Michael says, I will be there to help you every step of the way. आप डरिए मत किसी चीज़ से, कोई इंसान से, कोई सिचुएशन से डरिए मत. आगे बढ़िए, जानिए ये डिवाइन टाइमिंग है और इस टाइमिंग में शुभ है. आपका ये काम करना उचित है, आपको करना चाहिए. आप आगे बढ़िए प्लीज़. यही गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है. Please move forward. Please take a step towards your fulfillment of your dream or desire or any kind of situation that you want to get fulfilled. So, it is the perfect time, my dear. This is the card. And take it as a positive guidance from the universe. So, Taurus people, this was your reading and guidance from the universe. Hope you like it and enjoyed my reading. So do take it as a guidance and please apply them in your life. Write it down. It's a very, very good habit, writing down this and forming this as thought. Build it up in your thought process and do the changes, do the needful, and make your life even a better one. So I wish you all the very best, Taurus zodiac signs. And see you in my next bi-monthly reading. Till then, take care. Bye-bye.